So we will continue with questions of CET. 24th number question. Two gases occupy two containers A and B. The gas in A of volume 0.10 meter cube exerts pressure of 1.4 MPa. What do you mean by capital M? Mega. Mega मतलब 10 power 6. So 10 power 6 पास्कल का प्रेशर है and that in B of volume 0.15 meter cube exerts a pressure of 0.7 megapascal. The two containers are united by a tube of negligible volume and the gases are allowed to intermingle. Then if the temperature remains constant, the final pressure in the container will be. बहुत simple question है. You just need to understand you have two gases which occupy two different containers A and B. पहले गैस का वॉल्यूम मतलब पहले कंटेनर का वॉल्यूम 0.1 मीटर क्यूब and the pressure exerted TA is 1.4 megapascal. That in the B has volume BB 0.15 and exerts a pressure of 0.7 megapascal. The two containers are united by a tube of negligible volume. तो दोनों कंटेनर को हमने कनेक्ट कर दिया थ्रू नेग्लिजिबल वॉल्यूम ट्यूब. ये हमने ऑलरेडी देखा था इन द लास्ट सेशन इफ यू रिमेंबर. दो कंटेनर को कनेक्ट करने के लिए हमने एक थिन ग्लास ट्यूब यूज किया था. तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है. The two gases are allowed to intermingle. Then if the temperature remains constant, this is an important word. If the temperature remains constant, मतलब initial temperature in both the containers is equal to final temperature in both the containers, the final pressure in the container will be. Now, how do you solve this question? How do you solve this question? It's very simple. Can solve initial moles equal to final mole. So initial mole मतलब number of moles in A plus number of moles in B equal to final number of moles in F. वापस से कोई PV equal to nRT, तो N equal to RT by P, PV by RT. So you must remember this basic equations आपको याद होने चाहिए. PV equal to nRT, so N equal to PV by RT. So therefore PA VA upon RTA plus PV VB upon RTB equal to PF VF upon RTF. सबसे पहले तो R और R कैंसल होगा. क्यों? क्योंकि दोनों साइड पे R you can take out common and cancel it out, तो R जाएगा. PA VA वॉल्यूम क्या है दोनों का? सेम है क्या? सेम बोला है कि वॉल्यूम नहीं, अलग अलग वॉल्यूम है, प्रेशर भी अलग अलग है. तो PA VA अपॉन टेम्परेचर इज कांस्टेंट. तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे T लिखूंगा मैं प्लस PV VB अपॉन टेम्परेचर T इज कांस्टेंट इक्वल टू P फाइनल V फाइनल अपॉन टेम्परेचर T इज कांस्टेंट. करेक्ट? यहाँ तक क्लियर? तो टेम्परेचर सेम था, तो टेम्परेचर जो होगा कैंसल. तो आपको मिलेगा PA VA प्लस PV VB इक्वल टू PF VF. हमको फाइंड करना है फाइनल प्रेशर. PF फाइंड करना है. PF बोला है ना? यस. दे आर आस्किंग यू व्हाट इज फाइनल प्रेशर, so you are supposed to find out what is PF. So PF will be PA VA plus PV VB upon V final. But what is V final? VA plus VB, because both gas are allowed to intermingle. मतलब दोनों gases they will go from one container to another container. The total volume will be VA plus VB. So final pressure will be equal to PA VA plus PV VB अपॉन VA प्लस VB. अब इसके बाद आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. व्हाट इज PA 1.4
और आंसर भी मेगा पास्कल में है, तो इंटू 10⁶ लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज पहले से ही लिख दो, आंसर आएगा आपका मेगा पास्कल में। तो इसको 10⁶ किसी को भी लिखने की जरूरत नहीं है। 1.4 what is volume of 0.1 plus 0.7 0.15 0.15 upon total volume is 0.1 plus 0.15 1.4 into 0.1 0.14 15 7 105 into 10 power minus 3 10 power minus 3 कैसे आया? ये 0.7 है तो 10⁻7 into 10⁻−1 होगा। ये 0.15 है तो 15 into 10⁻−2 होगा। तो इसका -2 इसका -1 कितना आ गया? -3 करेक्ट। तो 10 पावर -3 और 15 7 का कितना होता है? 105 105 into 10 पावर -3 मतलब 0.105 अपॉन 0.25 ये आ जाएगा 0.14 प्लस 0.105 ये आ जाएगा 0.245 अपॉन 0.25। अगर ऊपर 0.25 होता नीचे 0.25 होता तो क्या आता? 1। ऊपर का नंबर 0.25 से थोड़ा सा छोटा है, slightly smaller, so answer will be slightly smaller than 1. You have 0.98, so your answer will be 0.98 megapascal, right? तो ये आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो रिमेंबर ये प्रेशर था एमपीए में, एमपी मतलब मेगा पास्कल 10⁶। फाइनल आंसर भी मेगा पास्कल में था, तो वी डिड नॉट राइट डाउन इनटू 10⁶। लिखोगे भी 10⁶, यहाँ पे भी 10⁶, तो एनीवे इट विल बी टेकन आउट कॉमन। तो वापस से 10⁶ तो आपको मेगा पास्कल लिखना ही पड़ेगा। तो डू नॉट राइट डाउन कन्वर्जन हियर, डायरेक्टली यू कैन हैव आंसर इन एमपीए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोक energy of all the molecules of a monatomic gas having volume V, pressure P is 3/2 PV. The total translational kinetic energy of all the molecules of the atomic gas as the same volume and pressure is 3/2 PV. क्योंकि मोनोएटॉमिक का 3/2 PV है, तो डायएटॉमिक का 5/2 PV आएगा, लेकिन वो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल है। आपको किसका पूछा है? ओनली ट्रांसलेशनल, तो ओनली ट्रांसलेशनल का क्या आएगा? 3/2 PV। तो नॉट नीडेड टू सॉल्व, डायरेक्टली 3/2 PV आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे OCO ऐसा लिखना मतलब ये लीनियर मॉलिक्यूल है, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। ऐसा लिखने का मतलब दे आर टेलिंग यू कि यहाँ पे ये लीनियर है, लीनियर में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ही होते हैं, तीसरा नहीं होता, ओनली 2, राइट। तो carbon dioxide is a triatomic gas. Mean kinetic energy of 1 gram gas will be mean kinetic energy of 1 gram gas. अब इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स है आपके पास। 1 ग्राम गैस, आंसर इन टर्म्स ऑफ केटी। सबसे पहले 1 ग्राम से पहले हम बात करेंगे 1 मॉलिक्यूल की। सिंगल 1 मॉलिक्यूल का एनर्जी कैसे फाइंड करोगे? हाउ डू फाइंड आउट energy of 1 single molecule? F/2 kBT भूल गए? F/2 kBT, F/2 kBT। अगर आपके पास मोनोएटॉमिक गैस है तो 3/2 kBT, अगर आपके पास डायएटॉमिक गैस है तो 5/2 kBT, करेक्ट, गुड। देन ये है सिंगल का। अगर मेरे पास, आपको क्या बोला है? 1 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ विल कैलकुलेट फॉर 1 ग्राम? एंड वेल बाय द वे से इतना पता होना चाहिए, व्हाट आर द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन इन कार्बन डाइऑक्साइड? वाइब्रेशन होता है कि नहीं उसमें? नो, यू हैव 2 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो हैज 2 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 7। कितना होगा? 7।
तो स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम f is degree of freedom coming from translation plus coming from rotation plus coming from vibration. These are 3, these are 2 and these are also 2, तो टोटल है 7। करेक्ट। ये है सिंगल मॉलिक्यूल का। हाउ विल यू फाइंड आउट फॉर 1 ग्राम? एवोगैड्रो नंबर 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? ओके, व्हाट यू कैन डू इज, देखो सिंपल एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लो। 1 मोल के लिए क्या करोगे? अगर मैं मल्टीप्लाई बाय n करता हूँ तो दिस इज एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ गैस। मैंने n क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि फिर आपको पता है कि मास दिया है ना, मास। तो आपको पता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, पता है कि यस, नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, F/2 kBT, राइट। यहाँ तक क्लियर? देन हाउ मच इज मास? 1 ग्राम। कितना है? 1 ग्राम। व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? 44। डिग्री ऑफ फ्रीडम 7/2 kBT, 7/88, 7/88 kBT। तो 7/88 आंसर है क्या कहीं पे? ऑप्शन नंबर डी। हाँ, ये n कहाँ से आया? तो अभी n कहाँ से आएगा? n आएगा क्या यहाँ पे? नहीं आएगा, n नहीं आएगा। अगर n है तो फिर यू विल हैव टू चेंज ऑल दिस। अगर n लिखा है ना तो फिर एक काम करो, यहाँ पे आप n लिखोगे, मतलब नंबर ऑफ एवोगैड्रो नहीं है, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो n, व्हाट इज n? What is number of moles? N upon Na. So what will be n? Na into n. Correct? Right? तो आपको 1 ग्राम दिया है, रिमेम्बर दिस। क्या दिया है आपको? 1 ग्राम। तो यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्वेश्चन में गलती है। तो क्वेश्चन में यू शुड मेक श्योर कि यहाँ पे कोई n नहीं होना चाहिए। तो क्या आएगा? 7/88 kT, या तो इन टर्म्स ऑफ RT होना चाहिए फिर, अदरवाइज दे शुड राइट इन टर्म्स ऑफ RT। वो ज्यादा इजी है। कैसे? यू नो व्हाट इज एनर्जी पर किलोग्राम? 3/2 RT/m। तो ये तो पता है ना आपको, 3/2 RT/m। 3/2, 3 मतलब वो डिग्री ऑफ फ्रीडम था, यहाँ पे 3 है क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम? नहीं। तो 7/2 RT/m, ये m कौन सा था? मॉलिक्यूलर वेट। तो 7/2 RT/m, m कितना है? 44। तो 7/88 RT, करेक्ट। व्हाट इज R? n into k। तो n into k तो हो गया। फिर ऐसा सॉल्व करो। गुड। तो अगेन रिमेंबर, कहीं कहीं पे यू विल हैव टू डायरेक्टली यूज फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। कौन सा एनर्जी? कौन सा एनर्जी? क्या पूछा है आपको? अरे, I understand it is Sunday, but that doesn't mean you will not answer. Energy per unit mass. What is energy per unit mass? F/2 RT/m. What is m? Molecular weight. F 7/2 RT, m is 44, मतलब 7/88। R is nk into t, तो nk into t हो गया। फिर भी करेक्ट नहीं है, ये आप पर किलोग्राम की बात कर रहे हो, है ना? पर किलोग्राम ही नहीं। यस यस। तो एनीवेज, with this small question I will leave you a very small another question. What is kinetic energy per gram and what is kinetic energy per kilogram? ये चेक करना है। आंसर तो वैसे भी वही आएगा। क्यों आएगा? 7/88। डन। ओके, into 10⁻³ so what I will do is, अब हो गया करेक्शन। ठीक, 1 किलोग्राम, क्योंकि फॉर्मूला किसका था? फॉर्मूला किसका था? किसका था? पर
पर किलोग्राम का डन। तो एनीवेज यू नीड टू रिमेम्बर बेसिक थिंग्स। नंबर ऑफ मोल्स का डेफिनेशन याद कर लो, यू विल अंडरस्टैंड कि 1 किलोग्राम है कि ग्राम है, वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, at standard temperature and pressure, what is standard temperature? 27 degree, pressure 1 atmosphere, the density of gas is 1.3 gram per meter cube। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, 1.3 ग्राम पर मीटर क्यूब नहीं होना चाहिए, होना चाहिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज डेंसिटी ऑफ एयर, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ एयर, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये यहाँ पे 1.3 ग्राम पर मीटर क्यूब बताया, मतलब ये गलती हो गई, दिस इज नॉट व्हाट यू हैव। आपको पता होना चाहिए नॉर्मली किसी भी गैस का या एयर का डेंसिटी होता है 1 से लेके 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज 330 मीटर पर सेकेंड, देन द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस विल बी, मतलब आपको दिया है डेंसिटी ऑफ गैस और आपको दिया है स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, और आपसे पूछा है व्हाट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला कहाँ से आएगा। इफ यू नो व्हाट इज गामा, व्हाट इज गामा, Cp by Cv. Do you know Myers relation? Cp is Cv minus R plus R. Cp equal to Cv plus R. माइनस कहाँ से हो गया? Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस R आएगा, अपॉन क्या आएगा? Cv आएगा, राइट, करेक्ट। Cp is always greater than Cv, तो कुछ प्लस करोगे तो Cp will be greater than Cv, तो Cp इक्वल टू Cv प्लस R होता है, ये पता होना चाहिए, करेक्ट, यस। ध्यान दें यहाँ पे Cv by Cv is 1 प्लस R by Cv। हमें फाइंड करना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब F। अभी तक इक्वेशन में F कहीं से नहीं आया, तो उसको लाओ। You know what is the basic general formula of Cv? FR by 2, याद है कि FR by 2, RF by 2 एक ही बात है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3R by 2, रिजिड डायटोमिक के लिए 5R by 2, नॉन रिजिड डायटोमिक के लिए 7R by 2, करेक्ट। यहाँ पे क्या है? R by Cv, यहाँ पे ये आ गया Cv इक्वल टू FR by 2, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको। यहाँ से Cv को शिफ्ट कर दो, Cv को शिफ्ट कर दिया तो R अपॉन Cv क्या आ जाएगा? 2 by F, इक्वेशन नंबर 2। देन सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो गामा आपको मिल जाएगा 1 प्लस R अपॉन Cv, बट R अपॉन Cv इज 2 by F। हमको फाइंड क्या करना है? F, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पूछा है आपको। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड करना अगर है तो यू शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल 2 by F is gamma minus 1, सिर्फ 1 को वहां शिफ्ट कर दिया। F फाइंड करना है तो F इक्वल टू 2 अपॉन गामा माइनस 1। तो अगर आपको गामा मिल गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ रेशियो गामा। अब ये गामा कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। गामा इज Cp बाई Cv, Cv प्लस R अपॉन Cv, क्योंकि Cp Cv प्लस R, तो 1 प्लस R बाय Cv, बट Cv इज FR बाई 2, तो R बाई Cv इज 2 बाई F। ये 2 बाई F यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो गामा इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई F, तो F मिल गया 2 अपॉन गामा माइनस 1। अब गामा कैसे फाइंड करोगे? वापस से Cp बाई Cv मत डालना, नहीं तो लूप में आ गए। करो फिर, वापस करो, वापस वहीं पे पहुंच जाओगे, ओके। Do not resubstitute gamma equal to Cp by Cv. You should know speed of sound, 11th standard sound chapter, highly neglected chapter, but it is important. तो पता होना चाहिए। You should remember speed of sound is gamma p by density, gamma into pressure upon density. Okay, ये पता होना चाहिए। अगर if you're not sure about the formula, make sure gamma is a ratio of same quantity, मतलब ये just a number है, dimensionless। pressure is force upon area, force is kilogram meter per second square upon density is kilogram per meter cube, बराबर ना? राइट, राइट।
सही की गलत? कैंसल एंड कैंसल, बराबर ही बोल रहा हूं मैं, ये ऊपर जाएगा, क्या होगा, क्या होगा, मीटर रेस टू, ये प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है। ठीक है, कल करते हैं उसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये क्या लिखा मैंने, फोर्स, दिस इज फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन एरिया, ये क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर और मीटर रेस टू 4 अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर मतलब मीटर पर स्पीड था क्या, यस, मीटर पर सेकंड है, यस। तो व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड, गामा पी अपॉन रो, हमें क्या चाहिए, गामा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी स्क्वायर इक्वल टू गामा पी अपॉन रो। तो गामा विल बी रो वी स्क्वायर बाय पी। ये जो इक्वेशन नंबर 3 आया, यहाँ पे हमको गामा की वैल्यू लगने वाली है टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम, रो वी स्क्वायर बाय पी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो, 1.3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, 330। 330 का स्क्वायर, 330 का स्क्वायर अपॉन प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ सीधा 10⁵, 1.013 to 10⁵, लेकिन आई विल जस्ट राइट डाउन 10⁵. अब हाउ डू यू सॉल्व दिस, इट इज सो सिंपल। नहीं, ऐसा नहीं करना, नहीं करना, 33 का स्क्वायर लिख देना अलग से, ओके, इनटू ये 10 का स्क्वायर आ गया 100 अपॉन 10⁵, बराबर, गुड। देन 10⁵, 33 का स्क्वायर रफली 1089 मतलब 1100, 1089 ना मतलब 1100। तो 1.3 इंटू 1100 इंटू 100 अपॉन 10⁵, करेक्ट। ये 4 और यहाँ का 5, कितना आया, this 4 and this 5 when gone, 11 into 1.3, 13 into 11 कितना आता है, 143, 143 राइट। 1.3 into 11 कितना आएगा, 14.3, और नीचे का बचा हुआ 10, तो कितना आ गया, 1.4, रफली 1.4, 1.4, क्वेश्चन खत्म। Do you remember what is the ratio of Cp by Cv for monoatomic? 5/3, 5/3 ना। मोनोएटॉमिक गैस का सब भूल गए, सब कुछ भूल गए, आगे लगने वाला है। मोनोएटॉमिक गैस का Cv होता है 3r/2, Cp होता है 5r/2, Cp अपॉन Cv होता है 5/3। 5/3 की वैल्यू कितनी आती है, 1.66। डायटोमिक गैस का Cv होता है 5r/2, Cp होता है 7r/2, मतलब गामा आ गया, Cp by Cv आ गया 7/5 विच इज 1.4। 1.4 रिजिड डायटोमिक, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5। डू यू सी, यस। अगर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो। तो F इक्वल टू, you will have to substitute value there, right? Therefore F equal to 2 upon gamma is 1.4 minus 1. F equal to 2 upon how much is this, 0.4, बराबर। 0.4 मतलब 4/10 मतलब 20/4, 20/4 मतलब कितना, 5, राइट, गुड। तो वापस एक बार फ्लो समझ लो, क्वेश्चन का फ्लो समझना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके पास दो इंफॉर्मेशन थी, एक थी डेंसिटी की 1.3 SI यूनिट्स, दूसरा था प्रेशर दैट इज विच इज 1 एटमॉस्फेयर दैट इज 10⁵ SI यूनिट्स पास्कल में, एंड यू हैड इंफॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी ऑफ गैस दैट इज 330। सबसे पहला तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। वेलोसिटी ऑफ गैस 330 मतलब एयर है, air is taken to be diatomic in most of the cases, क्योंकि आपके जो एटमॉस्फेयर में एयर है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एयर,
मैक्सिमम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, N2 and O2, these are डायटोमिक। क्वेश्चन तो इधर ही खत्म हो गया था अगर आपको पता होता कि यहाँ पे 330 मतलब ये एयर की बात है और एयर में कौन होता है डायटोमिक। डायटोमिक के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो आंसर क्या था सी। यू सी हाउ इंपॉर्टेंट और बेसिक्स, बेसिक्स पता था तो खत्म। 330 340 है तो एयर है, एयर है तो कौन है डायटोमिक है, खत्म। फिर भी ठीक है, नहीं आता, नहीं आता तो स्टार्ट कहीं से तो करना पड़ेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए इक्वेशन में लाना पड़ेगा, वो कैसे लाओगे, कैसे लाओगे, गामा इक्वल टू Cp by Cv। Do not make a mistake of writing Cv minus R because it is not Cv minus R, it is Cv plus R। तो यहां से आ जाएगा आपके पास गामा इक्वल टू Cv by Cv is 1 प्लस R by Cv। अब मैंने आपको बताया कि R Cv, what is Cv? FR by 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू R by 2, तो R by Cv कितना आ गया F by 2, बराबर ना, 2 by F, 2 by F, ये 2 by F वहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो गामा कितना 1 प्लस 2 by F। देन अगर अगर गामा मिलता है, यहां तक भी किया तो भी ठीक है, गामा मिलता है तो F मिल जाएगा। अब गामा फाइंड करने के लिए यू शुड रिमेम्बर 11th स्टैंडर्ड साउंड चैप्टर, इसका एक नाम भी था, ये जो फॉर्मूला है इसका एक नाम भी है, पता है किसने दिया था ये फॉर्मूला, न्यूटन। तो दिस you should know from 11, तो v square equal to gamma p upon rho, तो gamma equal to v square rho by p। v square 330, 33 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, 330 मतलब 33 इंटू 10, 33 330 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, और डेंसिटी कितना है 1.3 अपॉन प्रेशर कितना था 10⁵, ये लगभग 1100 है, ये और 100 है, ये 1.3 है, नीचे 10 पावर 5 मतलब 10 पावर 4 इंटू 10 है, कैंसल 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 कैंसल, 14.3 अपॉन 10 मतलब 1.43, 1.4 आया, मतलब ये है डायटोमिक। डायटोमिक के डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही होते हैं, कौन से डायटोमिक के, रिजिड डायटोमिक के। फिर भी इफ यू वांट टू सॉल्व तो जो फॉर्मूला था गामा का यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 1.4 इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ, तो 1.4 माइनस 1 इक्वल टू 2 बाई एफ, तो 0.4 इक्वल टू 2 बाई एफ, 1 जा एंड 20 जा, है ना, नहीं, वेरी गुड, कितना 0.2 लिखूं क्या, नहीं 0.2 नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, I don't understand what you're saying, 2 into 10 raised to -1 1 by f, हो गया, f इक्वल टू हो गया इंटू 10 raised to -1 ऊपर गया 1 and 5, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, so let us move ahead with next question now। If the mean free path of atoms is doubled, then the pressure of gas will become mean free path। if you are doubling it, तो सबसे पहले विदाउट एनी फॉर्मूला, विदाउट सॉल्विंग, एक चीज पक्का है, ऑप्शन नंबर डी नहीं आ सकता, क्योंकि मीन फ्री पाथ बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि प्रेशर कम फ्रॉम नंबर ऑफ कोलिजन्स। मीन फ्री पाथ बढ़ना मतलब कोलिजन्स कम होना मतलब प्रेशर कम होना, तो फॉर श्योर ऑप्शन नंबर डी तो नहीं आएगा, अभी बचे ए बी और सी। तो हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको एग्जैक्ट रिलेशन डिराइव करना पड़ेगा मीन फ्री पाथ मतलब लैम्डा में एंड प्रेशर में। तो हाउ डू यू फाइंड द रिलेशन बिटवीन मीन फ्री पाथ एंड प्रेशर, तो स्टार्ट ऑफ विद, who remembers what is the equation for mean free path, 1 upon root 2 pi, 1 upon root 2 pi d square n, which n, I told you that is not number of moles, that is number density, small n। ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये नंबर डेंसिटी ऑफ गैस है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स या कितने एटम्स है, राइट।
So do not get confused with this. Okay, then यहाँ तक क्लियर। अब हमको रिलेशन चाहिए मीन फ्री पाथ और प्रेशर का, करेक्ट, लेकिन हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एन एंड बी है। तो डू यू रिमेम्बर दैट पी वी इक्वल टू एन के बी टी, एन के टी। तो n by v from here will be p by kt, करेक्ट। तो ये आ जाएगा n by v equal to p by kt। ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from equation number 1 and 2 mean free path is equal to 1 upon root 2 pi d square, n by v is p by kt। तो by kt तो kt गया ऊपर, करेक्ट। k कांस्टेंट, रूट टू कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, गैस सेम है तो डायमीटर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, क्योंकि कहीं पे भी नहीं बोला कि टेम्परेचर चेंज किया। तो एवरीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर प्रेशर इज कांस्टेंट। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, क्वेश्चन खत्म। अगर आप मीन फ्री पाथ को डबल करोगे तो प्रेशर हाफ होगा, हाफ मतलब ऑप्शन नंबर बी, राइट। So just to complete this solution, just to complete P2 by P1, P2 by P1 is lambda 1 by lambda 2, correct। So P2 equal to lambda 1 और mean free path double कर दिया तो lambda 2 is 2 times of lambda 1 into P1। तो lambda 1 हो गया कैंसल। तो P1 by 2, P1 को बोला है P, तो P by 2, ऑप्शन नंबर बी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया वो, एनीवेज। द मीन फ्री पाथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर 0 डिग्री। स्टैंडर्ड वैल्यू है कि नॉर्मल वैल्यू है? नॉर्मल, क्योंकि स्टैंडर्ड में टेम्परेचर 27 होता है और ये 0 डिग्री है, ठीक है। आपको मीन फ्री पाथ मतलब लैम्बडा की वैल्यू दी है 0.8 into 10⁻⁷ मीटर। if the number of density of molecules, not number of density नहीं, number density, if the number density of molecules मतलब small n is 2.7 into 10⁻25 per meter cube, then the molecular diameter is, simple question। सिर्फ कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा रहेंगे, बाकी सब सिंपल है, क्योंकि अभी आपने बताया लैम्बडा इज 1/√2 पाई d स्क्वायर n। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूलर डायमीटर, राइट, डी स्क्वायर। हमको फाइंड डी करना है, हम पहले डी स्क्वायर लिख लेंगे 1/√2 पाई लैम्बडा इनटू n, करेक्ट। देन कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज एज यू कैन ऑलरेडी सी 3.2 3.2 3.2 2.3 मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन विल नॉट मैटर हियर, क्योंकि यूनिट देखो, nm नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, माइक्रोमीटर एंड मिलीमीटर। इसका मतलब कंपटीशन इन दोनों में है, क्योंकि 10⁻⁻9 एंड 10⁻10, बाकी आसपास भी नहीं है। तो अब पहले तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चेक कर लो, 10⁻⁻9 -10 -11, इन तीनों में से कोई आया, मतलब ए और बी में से एक आंसर आएगा, सी और डी नहीं आएगा। 10⁻⁻4 -5 के आसपास कोई आया तो इन दोनों में से एक आंसर आएगा, पहले दो नहीं आएंगे। तो ऑलवेज कीप आई ऑन द यूनिट्स आल्सो। तो अब 1/√2 पाई, थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा मैं, बिकॉज एग्जैक्ट आंसर की जरूरत नहीं है हमको। 1/√2 sin 45 cos 45 से पता ही होना चाहिए 0.7071, राइट। एंड एज आई टोल्ड यू कि हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं तो 0.7 तक लिखना सफिशिएंट है। 1/pi 0.318, बट आई टोल्ड यू अप्रोक्सीमेशन 0.3 तक सफिशिएंट है। लैम्बडा की वैल्यू कितने दी है आपको? 8 into 10⁻⁸, 8 into 10⁻⁸, 0.8 है, आई नो, बट 0.8 into 10⁻⁷ मतलब 8 into 10⁻⁸। दोज आर नॉट कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं, फिर 0.8 लिखो, हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। n, व्हाट इज n? 2.7 into 10⁻25, करेक्ट, राइट। यहीं से शुरू हो गया सिंप्लीफिकेशन, 1 जा
9 जा, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर, गुड। 10 raised to how much, कितना कितना 18, ये 25 है, ये -7 है, 18 ऊपर जाएगा तो -18 -18, ठीक। ये 0.7.8 पॉइंट हटा दो, 7/8 7/8 7/8 ओके, इक्वल टू 7/8, और यहाँ पे क्या है नीचे 9, बराबर, इंटू 10 to -18, करेक्ट, ऑल गुड। ये आ गया आपके पास b²। आंसर सॉल्व, खत्म। कैसे? 7/8 रफली 1, करेक्ट, ये रफली 1 है, तो इसको लिखना नहीं, डू नॉट राइट डाउन, और 1/9 फाइंड करना नहीं, क्यों नहीं, d², हमको d चाहिए था, क्या चाहिए था हमको, ये क्या है d², तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या आएगा 1/3, तो व्हेन आई टेक स्क्वायर रूट ऑफ दिस 1/3 into 10 raised to -9, डू नॉट राइट डाउन नैनोमीटर नाउ, फिलहाल नहीं, आखिरी स्टेप, व्हाट इज 1/3, 0.333, करेक्ट, 1/3 पता है ना, 0.33 आंसर में कहीं नहीं है, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है ना, 0.3 नहीं है, तो 3.3 इंटू 10 raised to -1, और ये -9, तो कितना, व्हाट इज 10 raised to -9, तो 3.3 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर बी 3.2 एंगस्ट्रॉम, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 calories of heat is needed to raise the temperature of 1 mole of an ideal monatomic gas from 20 degree to 30 degree at constant pressure. CPISP, 1 mole, molar specific heat, 1 kilogram तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, तो यहाँ पे CP या SP, CP, हमको बोला है अगर 1 मोल ऑफ गैस का, कौन सा गैस, मोनोटॉमिक गैस, इसका टेम्परेचर 20 से 30 करना है, तो 40 कैलोरीज ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, वैसे तो जोक है क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर, सेम गैस, राइट, ओवर द सेम इंटरवल 20 to 30 एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CP is always greater than CB, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो कौन होगा 20, क्योंकि CV is always less than CP, जब CP 40 है तो CB 40 से कम होगा, एक ही ऑप्शन था, कौन सा, फिर भी सॉल्व करना तो कर सकते हो, डजंट मैटर। कैसे, डू यू रिमेंबर अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा Q provided to the gas at constant pressure is N CP delta T, राइट, कितना हीट प्रोवाइड किया आपने 40, कितना मोल था 1, करेक्ट, CP पता है क्या, नहीं, फाइंड कर लेंगे, यहाँ से मिल जाएगा, व्हाट इज डेल्टा T 10, क्योंकि 20 से कहाँ लेके गए 30, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फिर आप बोलोगे डिग्री में क्यों लिखा, केल्विन में क्यों लिखा, डिफरेंस सेम आता, कर लो, 30 डिग्री मतलब 303 केल्विन, 20 डिग्री मतलब 293 केल्विन, 303 माइनस 293 10, ये भी 10 वो भी 10, करेक्ट, तो 40 इक्वल टू CP इंटू 10, 40 इक्वल टू CP इंटू 10, 1 एंड 4, तो CP कितना आ गया 4, आपको क्या पूछा है CV, गामा इक्वल टू CP बाय CV, तो CV इक्वल टू CP बाय गामा, CP कितना 4, ये कौन सा गैस है, मोनोएटॉमिक में गामा क्या होता है 5/, what is gamma for a monatomic gas,
5/3 पक्का 5/3 व्हाट इज 4/5 0.8 इंटू कितना 3 तो कितना 2.4 बराबर 2.4 2.4 है सीवी हमको सीवी नहीं पूछा हमको क्या पूछा है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कितना करोगे तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट इज एन सीवी डेल्टा टी एन तो 1 है ये कितना है 2.4 डेल्टा टी कितना है 10 तो रफली रफली कितना है तो रफली रफली 24 मतलब 20 करेक्ट अप्रोक्सीमेटली 20 ये अप्रोक्सीमेशन क्यों क्योंकि मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे यहाँ वैल्यू डायरेक्टली बता दिया मैंने 5/3 करेक्ट अगर हमको एग्जैक्ट करना होता तो एग्जैक्ट भी कर सकते थे एग्जैक्ट करने जाओगे तो ये आएगा 2 सीवी आएगा 2 CV2 आएगा और वैसे CV2 आएगा तो मल्टीप्लाइड बाई 10 2 into 10 इज 20 यहाँ तक क्लियर कर सकते हैं ना फाइन सीवी नहीं मैं बता रहा हूँ एक तो ऐसा करो ये करेक्ट है ये रॉन्ग नहीं है पर अगर आपको एग्जैक्ट ही चाहिए तो माइनस रिलेशन पता होना चाहिए सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर तो सीपी माइनस आर इक्वल टू सीपी कितना है 4 और आर के भी है 2 व्हाट इज 4 minus 2 2 तो सीवी कितना 2 अगर सीवी 2 है तो ये आंसर कितना आएगा 20 आएगा हो गया आंसर यहाँ तक क्लियर गुड वैसे तो सॉल्व करना ही नहीं था डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए अगर 40 से नीचे 2 ऑप्शन होते तो सॉल्व करना नहीं तो मत करना डन तो सो फार वी हैव सीन 3 to 4 3 मेथड्स एक तो डायरेक्ट आंसर लेस देन 40 दूसरा गामा इज सीपी बाय सीवी तीसरा सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर मतलब सीवी इक्वल टू सीपी माइनस आर और भी एक मेथड है वन मोर मेथड इज दैट अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड डेल्टा क्यू amount of heat supplied delta Q constant pressure constant volume constant pressure मतलब n Cp delta T constant volume मतलब n Cp delta T nn तो दोनों का 1 मोल है टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है करेक्ट हमको फाइंड क्या करना था डेल्टा Q एट V Cp बाय Cv क्या होता है गामा तो ये आ जाएगा गामा और ये आ जाएगा डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो इसको शिफ्ट कर दो तो डेल्टा क्यू अपॉन गामा मतलब मैं क्या कर रहा हूँ व्हाट वी आर डूइंग हियर इज सिर्फ इसको शिफ्ट कर दिया इसको शिफ्ट करोगे तो ये यहाँ पे आएगा ये कितना दिया था ये 40 ये कितना है 5/3 क्यों मोनोटॉमिक है 1 का एंड 8 का 8 is 24 राइट तो ऐसा भी आ सकता है यू नीड टू रिमेंबर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अ गैस द डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स इज 4150 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स बोला है मोलार की प्रिंसिपल नहीं बताया तो कौन सा है ये मोलार स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस है कि प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस है प्रिंसिपल जूल पर किलोग्राम पर केल्विन अगर मोलार होता तो जूल पर मोल पर केल्विन होता तो यू नीड टू अंडरस्टैंड सबसे पहले डिफरेंस इन टू स्पेसिफिक हीट्स मतलब एसपी माइनस एसवी ये आपका स्टेट बोर्ड का भी ऐसा क्वेश्चन था विद डिफरेंट वैल्यूज 4150 जूल पर केजी पर किल राइट देन what is the specific heat मतलब what is the specific heat at constant volume मतलब क्या पूछा है SV if the ratio of specific heat मतलब किसका रेशो SP by SV equal to 1.4 बराबर गामा की वैल्यू दे दी आपको जरूरत तो वैसा हमको 2-3 मेथड है पर कम से कम मुझे ये बता दो 1.4 वैल्यू आना मतलब कौन सा गैस है डायटोमिक ओके गुड
देन अगेन देयर आर 2 to 3 मेथड्स टू सॉल्व। मैं कोई भी एक बता देता हूँ। तो SP इक्वल टू 1.4 इंटू SV। पर फाइंड क्या करना है तुमको? SV। जब फाइंड SV करना है तो इक्वेशन नंबर 1 से किसको एलिमिनेट करोगे? किसको एलिमिनेट करेंगे? SP को, क्योंकि फाइंड क्या करना है? SV। तो क्या लिखेंगे? SP इक्वल टू 1.4 इंटू SV। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 put this here, you will get 1.4 SV minus SV equal to 4150। हो गया, क्वेश्चन खत्म। 10,000 के आसपास आएगा। क्यों? व्हाट इज दिस? व्हाट इज रेफरेंस साइड? क्विक 0.4 0.4 SV 4150। अगर इसको मैं 4000 मानता हूँ तो ये 1 जा और ये 10,000 जा, क्योंकि ये 0.4 था। ये क्या था? 0.4 था। 10,000 के आसपास आंसर है। 10,375। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। If 2 moles of diatomic gas and 1 mole of monatomic gas are mixed, then the ratio of specific heats is। अभी तक हमने ये सोचा ही नहीं। हमको जो इतना पता था, gamma for monatomic 5/3, gamma for rigid diatomic 7/5, non-rigid 9/7। But did you ever thought कि real life situation, atmosphere, air, you have many mixed gases here. You have carbon dioxide, which is not monoatomic, right? Which is triatomic. You have hydrogen, diatomic. You have oxygen. You have nitrogen. And you may have some part of other gases which maybe are polyatomic also. तो 2, 3, 4 गैसेस का मिक्सचर का स्पेसिफिक हीट का रेशो क्या आएगा? तो दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर solving such question, and it is very simple. You just have to remember a formula for gamma mix, specific heat of mixture of gases। the specific heat of gamma mixture of gases, इसका फॉर्मूला है N1, मतलब number of moles of first gas, gamma 1 specific heat of first gas, ratio of specific heat मतलब, right, gamma 1 minus 1 plus N2 gamma 2 upon gamma 2 minus 1 upon। अब होता क्या है नॉर्मली, हमको याद ही नहीं रहता। यू डोंट रिमेम्बर कि क्या आएगा डिनोमिनेटर। क्या फाइंड कर रहे हो? gamma। मतलब अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड हैव gamma, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, करेक्ट। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कैंसल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैंसल। और इसके लिए N1 अपॉन gamma 1 minus 1 plus N2 upon gamma 2 minus 1। डायमेंशनली स्पीकिंग N1 upon gamma minus 1 ये हो गया कैंसल। डायमेंशनली नंबर ऑफ मोल्स अपॉन gamma minus 1 कैंसल। तो कौन बचा? gamma। लेफ्ट हैंड साइड इज gamma, राइट हैंड साइड इज gamma। डायमेंशन अगर याद रहेंगे, पहली बात तो ये कि ये जो दिस इज इटसेल्फ डायमेंशनलेस, CP/CV, रेशियो ऑफ 2 सेम क्वांटिटीज, डायमेंशनलेस। बट फिर भी आइडियली सोचो, gamma इक्वल टू gamma ही आ सकता है। लेफ्ट हैंड साइड अगर डिस्टेंस है तो राइट हैंड साइड डिस्टेंस होगा। लेफ्ट हैंड साइड अगर स्पीड है तो राइट हैंड साइड स्पीड होगा। लेफ्ट हैंड साइड अगर एक्सेशन है तो राइट हैंड साइड भी एक्सेशन होगा। लेफ्ट हैंड साइड अगर रेशो है तो राइट किसका रेशो है? CP/CV। मतलब gamma है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? gamma होगा। हमने लिख दिया N1 gamma 1 अपॉन gamma 1 minus 1 प्लस N2 gamma 2 अपॉन gamma 2 minus 1। होना चाहिए था gamma ओनली, क्योंकि gamma 1 प्लस gamma 2 प्लस gamma 3 प्लस gamma 4 प्लस gamma 5 ये सारे के सारे स्पेसिफिक हीट्स के रेशो है। सबका एडिशन, डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस इज डिस्टेंस। तो gamma 1 प्लस gamma 2 प्लस gamma 3 प्लस gamma 4, दीज आर ऑल आफ्टर एडिंग विल बी gamma। तो gamma एंड gamma, लेकिन एक्स्ट्रा कौन आ गया यहाँ पे? राइट, N1 अपॉन gamma 1 minus 1। तो उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 2 गैस है, 3 होगा तो तीसरा भी लिखो N3 gamma 3 अपॉन gamma 3 minus 1 प्लस N3 अपॉन gamma 3 minus 1। ये याद रहेगा फॉर्मूला? क्योंकि ये याद रहेगा तो फिर मैं, और है तो क्वेश्चन एक, लेकिन हम इसको और 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन
what are the parameters given to you? एक चीज याद रखो, ये फॉर्मूला याद रहा तो आने वाले मतलब फ्यूचर में 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर दोगे. रिमेंबर दिस. अब नंबर ऑफ मोल्स, 2 मोल्स किसका? डायटोमिक 2 मोल. पहला गैस कौन सा है? डायटोमिक. व्हाट इज डायटोमिक? 7/5 अपॉन 7/5 माइनस 1 प्लस 1 मोल. किसका 1 मोल? मोनोटॉमिक 1 मोल मतलब 5/3 अपॉन 5/3 माइनस 1. डिनोमिनेटर का ज्यादा सोचना नहीं होगा आपको, क्योंकि सिर्फ गामा गामा छोड़ दो, है ना. गामा गामा छोड़ के पूरा का पूरा नीचे आ गया तो कौन आएगा? 2/7/5 माइनस 1 प्लस 1/5/3 माइनस 1. करेक्ट. अब जस्ट कैलकुलेशन ही करने हैं. do not do anything with this file, right? 2 into 7 14 upon 5 बराबर 7/5 minus 1 2/5. वेरी गुड. 5 कैंसिल करेंगे प्लस 5/3 और नीचे 2/3 तो 3 भी कैंसिल होगा. वी विल कैंसिल दैट आउट ऑल्सो. मोल अपॉन में क्या आएगा? बताओ. अरे 2/2/5 बराबर प्लस 1/2/3. गुड. क्या क्या कैंसिल होता है? ये और ये गया, ये और ये गया, ये 1 जा, ये 7 जा. तो पहला टर्म बचा सिर्फ 7. दूसरा टर्म है 5/2. 5/2 मतलब 2.5 2.5. 7 प्लस 2.5 कितना? 9.5. तो ऊपर 9.5 है. डिनोमिनेटर देखते हैं. 2 गया तो ये गया, 2 गया, ऊपर गया 5. ये है 3/2. 3/2 मतलब 1.5. 5 प्लस 1.5 इज 6.5. तो 6.5 बराबर 95/65. 5 19 जा, 5 13 जा, 19/13 ऑप्शन नंबर सी. करेक्ट. वेट, करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है. नॉट टू वरी अबाउट, बट वेट. What happens if you have number of moles which are same? Suppose ऐसा क्वेश्चन दिया है 2 moles of monoatomic are mixed with 2 moles of diatomic. दे सकते हैं ना? तो दे सकते हैं. अगर नंबर ऑफ मोल सेम है, लुक, नंबर ऑफ मोल सेम है तो n और n सेम है. ये भी n और ये भी n सेम है. अगर ये n और n सेम है तो ये n कॉमन, वहां से भी n कॉमन. कॉमन मतलब कैंसल एंड कैंसल. तो ये आपको फॉर्मूला मिलेगा व्हेन यू हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स. बराबर. क्लियर. अब ऐसा बोल सकते हैं 2 moles of hydrogen are mixed with 3 moles of oxygen. So what is the mixture? What is the specific heat of mixture? करके देखो. हाइड्रोजन इज डायटोमिक, ऑक्सीजन इज, हाँ तो यस, नॉट दिस वन. तो गामा दोनों का क्या है? सेम है. बराबर. फॉरगेट अबाउट नंबर ऑफ मोल्स फॉर द टाइम बीइंग. इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? n1 प्लस n2 अपॉन 1 गामा माइनस 1 n1 प्लस n2. कैंसल 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 कैंसल. क्या बचा? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना. अगर 2 सेम टाइप के गैस को मिक्स कर रहे हो तो सेम ही टाइप रहेगा. डायटोमिक एंड डायटोमिक विल नेवर गिव यू ट्राइटोमिक, इट विल बी डायटोमिक. तो ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं आपका टाइम वेस्ट करने के लिए. तो इफ आई एम मिक्सिंग 2 moles ऑफ नाइट्रोजन with 3 moles of oxygen and 5 moles of hydrogen, then what is the ratio of specific heat of mixture?
डायटोमिक है 7/5 मतलब 1.4, so nothing to solve there. Okay. अगला क्वेश्चन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम of carbon dioxide at 27 degrees Celsius is mixed with 16 gram of oxygen at 37 degrees Celsius. The temperature of the mixture is. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हो? इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सबसे पहले यू मस्ट नो देयर आर टू गैसेस. एक है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड. दूसरा है ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर कम है और ऑक्सीजन का ज्यादा है. So heat will flow from higher temperature to lower temperature, and after a while they will basically be in equilibrium, मतलब at same temperature. और वही temperature पूछा है. What is the temperature of the mixture, मतलब what is equilibrium temperature. अब जब है ही दो गैसेस, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो जितना हीट लॉस ऑक्सीजन करेगा उतना ही हीट गेन CO2 का होगा. तो हीट lost by oxygen, you have to start thinking like this. जब तक ऐसा नहीं सोचोगे ना तब तक फिजिक्स होने से रहा. दो ही गैस है. You have only two gases in a system. One is at a higher temperature, other is at a lower temperature. Point number 1, एक हीट लॉस करेगा तो दूसरा गेन करेगा. जो हीट लॉस कर रहा है तो जो फाइनल टेम्परेचर है वो उसके टेम्परेचर से कम होगा, मतलब 37 से कम होगा. और जो हीट गेन कर रहा है 27, तो 27 से ज्यादा होगा. मतलब आपका जो फाइनल टेम्परेचर है वो 27 से 37 के बीच में आएगा. 27 से 37 के बीच में आएगा. राइट. ना 27 आ सकता है ना 37 आ सकता है. राइट. मतलब कम से कम प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग रॉन्ग, क्योंकि अगर 4 ऑप्शन थे तो प्रोबेबिलिटी गोइंग रॉन्ग इज 3/4. 75% चांसेस कि आप गलत करोगे, 25% चांसेस करेक्ट करोगे. कम से कम चांसेस आपने बढ़ा दिए सही करने के. अभी दो ही ऑप्शन रह गए. राइट. तो या तो ये या तो वो, मतलब 50-50% चांसेस आ गए. तो हीट लॉस्ट बाय O2 इक्वल टू हीट गेन बाय CO2. अब पूरे सिस्टम में, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा बोला कि वॉल्यूम चेंज किया है? नहीं. तो वी विल टेक दिस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो व्हाट इज हीट इक्वेशन, वो भी 11 में सीखा था. नहीं, हीट इक्वेशन पता. तो मैंने बोला कांस्टेंट वॉल्यूम. व्हाट इज हीट गेन्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम? NCV डेल्टा T. करेक्ट. तो NCV डेल्टा T ये पूरा का पूरा किसके लिए चल रहा है? O2 के लिए. और ये NCCV डेल्टा T किसके लिए? CO2. नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, लेकिन मास पता है. वेरी गुड. वापिस से वही आ गए. नंबर ऑफ मोल्स इज मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. अब N इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बराबर. CV डेल्टा T, बी केयरफुल हियर. नॉर्मली आदत क्या होती है? फाइनल टेम्परेचर माइनस, लेकिन ये हायर टेम्परेचर पे है, ये हीट लॉस करेगा. तो इसका इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है और सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर कम है. तो T - 37 मत लिखना. व्हाट इज T फाइनल टेम्परेचर? व्हाट इज 37 टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन? रिमेंबर दिस. डेल्टा T मतलब आदत क्या होती है? फाइनल माइनस इनिशियल. यहाँ उल्टा है. यहाँ पे हॉटर गैस कौन सा है? ऑक्सीजन. तो सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर 37 से कम है, तो क्या लिखोगे? 37 माइनस T. दिस यू हैव टू रिमेंबर. डू नॉट फॉरगेट. राइट. दिस अगेन मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, CV. करेक्ट. T - 27. वेरी गुड. CO2. बराबर. यहाँ तक क्लियर. बट डू यू नो यहाँ पे ये CV ऑफ CO2 क्या है
और CV ऑफ O2 क्या है पता है? नहीं पता तो फाइंड करो, कैसे फाइंड करते हो? अभी तो यूज किया FR/2, भूल गए FR/2। हाँ, O2 कौन सा गैस है? डायटोमिक, रिजिड डायटोमिक, बराबर। और ये FR/2 मैंने अभी बताया था, इसके साथ 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं CO2 के। CO2 के 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3 फ्रॉम ट्रांसलेशन, 2 फ्रॉम रोटेशन, 2 फ्रॉम वाइब्रेशन। अनलेस ऐसा बोला होगा कि वाइब्रेशन कंसिडर मत करो तो मत करो, फिर क्या लिखोगे? 5, बराबर। क्लियर? नाउ इट इज टाइम टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना दिया है? 16। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 32, बराबर। देन F5, R/2 तो कैंसिल होने वाला है, कैंसिल करेंगे। 37 माइनस T इक्वल टू 22 अपॉन 44, 7R/2, T minus 27. Then cancel out whatever you can cancel out. गया and गया। 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, cancel and cancel। तो क्या बचा? 5 into 37 minus T equal to 7T minus 27, बराबर ना? एक भी गलती हुई तो आंसर गलत। 37 5 370 का हाफ 160 180 185, बराबर। 185 185, ठीक है ना? बराबर ना? माइनस 5T इक्वल टू 70, 27 7 था 54 में 27 का हाफ 135 प्लस 54 189। ओके, आई बिलीव यू आर सेइंग राइट, ठीक है, करेक्ट। इसको शिफ्ट कर दो, इसको शिफ्ट कर दो। 185 प्लस 189 इक्वल टू 12T, बराबर। 185 370 374 अपॉन 12 12 12 12 3 जा कितना? 36, तो 30 के ऊपर है। 12 31 जा 372, तो 31 के भी ऊपर है, मतलब 31 के भी ऊपर है। ऑप्शन नंबर, अब वेट, लुक, ए या डी, आई विल लिव इट ऑन टू यू टू चेक। जो भी आएगा वो खुद को करना है, बट प्रोसेस यही है सॉल्व करने का, राइट। और हमने क्योंकि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रखा था तो आंसर डायरेक्टली डिग्री सेल्सियस में ही आएगा, करेक्ट। गुड, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब a gas mixture consists of oxygen and 2 mole of oxygen and 4 mole of argon। argon तो वैसे भी इनर्ट है, इनर्ट तो मोनोएटॉमिक ही होता है। निग्लेक्टिंग ऑल द वाइब्रेशनल मोड्स, बोल दिया निग्लेक्टिंग ऑल द वाइब्रेशनल मोड्स, मतलब O2 ऑक्सीजन जो है ये रिजिड डायटोमिक है। तो पिछले क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया था, तो जब तक मेंशन नहीं किया हो you will have to take what is the real value of F, correct, right। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 + 2 + 2 कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया था इसके लिए। देन यहाँ पे बोला है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ आर्गन आर मिक्स्ड, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई विल टेल यू सम शॉर्टकट्स, हमेशा याद रखना। अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, अगर आपको F पता है, तो आपको पर मॉलिक्यूल का एनर्जी पता है। अगर आपको पर मॉलिक्यूल का एनर्जी पता है तो आपको 1 मोल का पता है, Na/Kb is R, तो आपको 1 मोल का एनर्जी पता है, कितना है? F/2 nRT, ये 1 मोल का है, कितने का है? 1 मोल। तो आपको n मोल्स का पता है,
right? What is this? Energy of n moles of a gas. Correct? Now that clear? If you look at the answer, RT, yes. तो ओनली थिंग इज कि अगर आपको F पता लग गया तो हो गया आपका काम. तो ये याद रखना. You should remember, always remember energy per molecule. Energy per molecule equal to F by 2 kBT. Correct? Energy per mole, because 1 mole contains Avogadro number. इसका मतलब energy per mole, energy of per mole मतलब energy of 1 mole of gas. This is what I'm saying. F by 2 RT, which means you know energy of n moles. मैं इसको En लिखने यहाँ पे total energy लिख देता हूँ. This is total energy multiplied by n. यहाँ तक clear? अब हमारे पास जो गैस है वो दो का मिक्सचर है. तो एनर्जी ऑफ मिक्सचर कौन से दो गैसेस थे? ऑक्सीजन एंड आर्गन. ऑक्सीजन O2 एंड आर्गन Ar. बराबर. तो यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ O2, बाकी सब सेम. बाकी क्या है? RT/2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ आर्गन Ar and RT/2. यहाँ तक क्लियर? Is this clear? Yes, no, yes. तो NF/RT/2 ये याद रखना. Energy of n moles of gas, NF/RT/2. तो NO2 FO2 प्लस NAR FAR और RT/2 आ गया बाहर. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने थे? 2. डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ऑक्सीजन निग्लेक्टिंग ऑल द वाइब्रेशनल मोड्स 5, क्योंकि 3 ट्रांसलेशन से और 2 रोटेशन से 5 प्लस कितने थे? 4 मोल. और ये तो बिकॉज दिस इज मोनोएटॉमिक. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. 11 क्यों? ये 2 into 5 हाउ मच? 10 में 12 ऐड करोगे तो कितना? 22/2 कितना? 11. तो आंसर इज 11 RT. So if you do calculations, 10 plus 12, 22 RT/2, this is equal to 11 RT. Option number T. So that's it for today.